Hello everyone, I'm Abhishek from Minerva and today we are just going to solve some numerical question from Spherical Mirror. So the first question is, an object of 4 cm in size is placed at a distance of 25 cm from a concave mirror, right? So the object size is mentioned over here that it is having a height of 4 cm. We'll write it down later. So here it is placed at a distance of 25 cm from a concave mirror. So obviously this is the object distance. So the object distance is represented as u and it is of minus of 25 cm. First thing, you have to note it down all the data given in the question. Now it is having a focal length of 15 cm. So the focal length of a concave mirror, that is of minus 15 cm, right? These two things are given. Now what we'll do with that of two things, that we'll find out the value of image distance, right? So we'll use the mirror formula, that is of 1 by v plus of 1 by u equals to 1 by f. In that case, at first we have to find out the value of image distance, then we are able to find out the magnification, then we can say that what will be the height of the image. So at first we are just going to substitute all the values in the mirror formula. So 1 by v plus of 1 by, what is the value of u? That is of minus 25. It is equals to minus of 1 by 15. So we are getting 1 by v minus of 1 by 25, that is equals to minus of 1 by 15. So 1 by v is equals to 1 by 25 minus of 1 by 15, right? That is of 75 will be the LCM. Now that is of 3 minus of 5. So we are getting 1 by v equals to minus of 2 by 75, right? So 1 by v equals to minus of 2 by 75. So what will be the value of v? V will be equals to minus of 75 by 2. So it is equals to minus of 37.5, right? So we are able to find out the value of image distance. So in this case, as we are able to know everything, that is the object distance, the image distance and the focal length, right? Now in that case, we have to find out the value of magnification. Why we need that magnification? Because with the help of magnification, we are able to find out the value of image height. Because we know that magnification, it is equals to minus of v by u and it is equals to hi by ho. What is hi by ho? Because h of I is the image height and h of o is the object height. So what we'll do here? That is of magnification equals to minus of v by u. So at first we will substitute the value of v and u in this formula. So what is the value of v? That is of minus of 75 by 2. So we are just going to substitute that value, that is of minus 75 by 2 divided by of, what is the value of u? That is of minus 25. So the minus is getting eliminated and we are just getting as minus of 3 by 2. So this is the magnification. हम लोगों को मैग्निफिकेशन मिल गया. तो मैग्निफिकेशन अगर आपको माइनस ऑफ 3 बाई 2 मिल जाता है, देन उसके बाद आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है h ऑफ i एंड h ऑफ o, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन कितना मिला आपको? माइनस ऑफ 3 बाई 2, राइट? इट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज आपको निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर. So height of image divided by 4 cm. So we are getting h of I, that is equals to minus of 6 cm. So in this case, we are just able to find out the height of image as minus of 6 cm. Why the minus sign has come over here? When we are just going to draw the ray diagram, you will understand that why the minus sign has come over here. बिकॉज जब हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था तब हमने बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जितना सारा डिस्टेंस है वो अगर पॉजिटिव होता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का सारा डिस्टेंस नेगेटिव होगा. इसका मतलब कंकेव मिरर में जो भी आपका इमेज बनता है मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, राइट? तो इस केस में हम देख रहे हैं, अगर हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं आफ्टर रबिंग दिस, देन विल गेट टू अंडरस्टैंड that where the image is getting formed, so that we can see that in this case the height of image is having a minus of 6 cm. वो आपका कहाँ पे बन रहा है? अगर हम लोग यहाँ पे उसका रे डायग्राम बनाते हैं तो ये आपका कंकेव मिरर है, राइट? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर आपका पोल, ये आपका फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर.
ध्यान से देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक 15 होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज 25 सेंटीमीटर, तो जरूर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया होगा। अगर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो ऑब्वियसली ये बाहर में आपका इमेज फॉर्म होगा। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर का है और इमेज डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये 37.5 सेंटीमीटर का है, राइट। अगर फोकल लेंथ आपका 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर का होगा और इमेज आपका इससे बाहर बना है, तो ये ठीक है कि ये 37.5 सेंटीमीटर पे बना है। ये सारा चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि साइन कन्वेंशन आपको पता होता है फिर भी आप गलती करते हो तो आपको गलत जगह पे इमेज फॉर्मेशन मिलता है। कभी अगर आपको प्लस में मिल गया, कभी अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक किए तो आपको कम मिल गया, तो एक बार रे डायग्राम बना के चेक कर लेना है कि मेरा जो डिस्टेंसेस निकला है वो सही है कि नहीं, राइट। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो हाइट था वो एक्चुअली 4 सेंटीमीटर का था। अब इमेज का जो हाइट होगा वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि हमने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो उसके लिए जो इमेज मिलेगा वो आपको एनलार्ज्ड इमेज मिलेगा। तो इमेज आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ है, तो इसीलिए हमने इमेज के यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज किया है, दैट इज ऑफ -6 सेंटीमीटर जो हमको मिला है एज एन इमेज हाइट। तो इस तरीके से एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने को बोलते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आप पोजीशन, नेचर, हाइट ये सब कुछ फाइंड आउट करो, इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा और आप इसका रे डायग्राम भी बना लो, तो उसके लिए आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है वहां पे। तो इसीलिए पहले क्या करना है कि जो भी डाटा क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले लिख लेना है, देन मिरर फॉर्मूला यूज करके उसका जो भी इमेज डिस्टेंस है वो उसको निकाल लेना है। देन मैग्निफिकेशन आप फाइंड आउट करो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -v/u, वहां से मैग्निफिकेशन का एक वैल्यू मिलेगा। देन आप मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi/ho फॉर्मूला को यूज करो, देन यू विल गेट द इमेज हाइट, दैट इज इन दिस केस हम लोग को मिला -6 सेंटीमीटर। देन एक बार रे डायग्राम ड्रॉ करके देख लो कि सारा वैल्यू आपका सही है कि नहीं। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है आपके पास, आप देख लो। 4.5 सेंटीमीटर का एक नीडल है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट आपको गिवन है, राइट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 4.5 सेंटीमीटर। जो भी डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले लिख लेना है। इट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है, इट इज ऑफ -12 सेंटीमीटर। देखो दोनों के लिए, जैसे कंकेव मिरर पिछले वाला केस था, कन्वेक्स मिरर ये वाला केस है, तो दोनों के लिए साइन कन्वेंशन जो है उसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। कन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन में अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो एक चीज ध्यान में रखना, मिरर आपका ऐसा दिखता है, राइट, जिसका अंदर वाला पोर्शन पूरा कोटेड रहता है और बाहर का सरफेस आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज करते हो। आप यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करो, आपको यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज ही मिलेगा जो एक्चुअली एक वर्चुअल इमेज होगा, राइट। तो इधर आपका पोल रहता है, राइट। ये मान लीजिए यहां पर मान लीजिए कि आपका फोकस यहाँ पे रहा और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हो तो यू तो आपका ऑब्वियसली माइनस होगा। इस तरफ अगर आपका इमेज बनता है तो इमेज डिस्टेंस वो आपका प्लस में होगा। फोकस भी इसी तरफ का है तो फोकस भी ऑब्वियसली आपका प्लस होगा, राइट। मतलब फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों आपका पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिर्फ आपका नेगेटिव होगा, राइट। तो ऐसे कंफ्यूजन को दूर करना है। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका दे दिया है -12 सेंटीमीटर, राइट। फोकल लेंथ आपको दे दिया है 15 सेंटीमीटर, सो फोकल लेंथ विल बी अ +15 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, आपको मिरर फॉर्मूला यूज करना है। मिरर फॉर्मूला में क्या कहा गया है कि 1/v + 1/u = 1/f, राइट। यही वाला मिरर फॉर्मूला आपको यूज करना है। इसमें पहले आप सारा वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे -12 सेंटीमीटर गिवन है, फोकल लेंथ आपको +15 सेंटीमीटर गिवन है, वो आप पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। जैसे कि 1/v + 1/u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -12 सेंटीमीटर, राइट, एंड इट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 1/15। सो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, -1/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/15। तो v का वैल्यू आपको मिलता है 1/12 + 1/15, राइट। नाउ अगर हम लोग एलसीएम करते हैं इसके बाद
देन 1 बाई वी इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, दैट इज ऑफ 1 बाई 12 प्लस ऑफ 1 बाई 15. इसका एलसीएम करेंगे तो 12 and 15, that is of 3 4s are 12, 3 5s are 15, 60, right? आपको LCM में 60 मिलेगा, that is of 12 5s are 60, 15 4s are 60. So 1 by V equals to 9 by 60. So 1 by V equals to, अगर आपको 9 by 60 मिलता है तो V का वैल्यू कितना होगा, V equals to obviously 60 by 9, right? So ऐसे आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाता है. इमेज डिस्टेंस अगर आपका 60 by 9 है तो ऑब्वियसली आपका जो इमेज बना है वो इस साइड मतलब राइट साइड में आपका बना है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे -12 सेंटीमीटर है, मतलब वो पोल से लेफ्ट साइड में है, राइट? मतलब ये वाला डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट इज ऑफ 12 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस आपका इमेज डिस्टेंस है, दैट इज ऑफ 60 by 9 सेंटीमीटर, राइट? अब हम लोग को इसका पोजीशन पता चल गया है इमेज का. अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्निफिकेशन को फाइंड आउट करेंगे. मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, दैट इज ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी बाई यू, राइट? सो यहाँ पे v क्या गिवन है, दैट इज ऑफ 60 by 9, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 60 by 9 डिवाइडेड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, दैट इज ऑफ -12. सो वी आर जस्ट गेटिंग द मैग्निफिकेशन एज ऑफ 5 by 9. मैग्निफिकेशन का जो रेशियो है, मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आपको मिला है वो 1 से छोटा है. इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज था इसका डिमिनिश्ड इमेज आपको मिलने वाला है, राइट? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कर लेना है. तो मैंने यहाँ पर जो सेक्शंस यूज किया है वो एक्चुअली शायद आपको ओवरलैप होता हुआ दिखेगा. इस पोर्शन में मैंने कन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया है, जहां पर हर एक का साइन कन्वेंशन मैंने बता दिया. इसके बाद सारा वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख लिया है. देन मिरर फॉर्मूला में सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वी आर गेटिंग द इमेज डिस्टेंस एज 60 by 9. अगर इमेज डिस्टेंस आपका 60 by 9 है, देन विल यूज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन. इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v by u. We have substituted all the values and we are getting the magnification as minus of 5 by 9, right? So अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से छोटा है, मतलब मैग्निफिकेशन का जो वैल्यू आपको मिला वो अगर 1 से छोटा है, इसका मतलब क्लियर है कि आपको जो इमेज मिलेगा वो डिमिनिश्ड फॉर्म में होगा. ऑब्जेक्ट का साइज अगर 4.5 है तो आपको इमेज का हाइट इससे कम ही मिलेगा, राइट? नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, where an erect image of 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror, right? So the radius of the curvature is 36 centimeter. So सबसे आसान चीज जो आपको given है that is of the radius of curvature, right? So radius of curvature अगर आपका 36 सेंटीमीटर है तो obviously focal length कितना होगा, radius of curvature का हाफ होगा, that is of 36 by 2, that is of 18 सेंटीमीटर. तो आपको पहले focal length find out करना है. अभी इसका साइन कन्वेंशन मैंने कुछ लिखा नहीं है. Now what is the position of the object? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालने को बोला है, तो क्या क्या चीज गिवन है? एक मेन चीज जो आपको गिवन है, that an erect image of 3 times the size of the object is obtained with the help of a concave mirror. concave mirror इरेक्ट इमेज सिर्फ एक ही केस में बनाता है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखोगे, राइट? तो हम पहले रे डायग्राम्स थोड़ा सा बना लेते हैं कि आपका concave mirror है, ये आपका पोल है, ये आपका फोकस एंड दैट्स योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? तो ऑब्जेक्ट जरूर आपका इन दोनों के बीच में होगा, तब जाके आपको ऐसा इरेक्ट इमेज आपको मिला होगा, राइट? मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आने वाला है वो फोकल लेंथ का जो वैल्यू है उससे कम होगा. नाउ यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन इरेक्ट इमेज ऑफ 3 times the size of the object is obtained. सो ऑब्वियसली मैग्निफिकेशन का वैल्यू यहाँ पे 3 है, राइट? तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या मालूम, दैट इज द माइनस ऑफ v by u इक्वल्स टू ऑफ 3, राइट? सो यहाँ पे बोल सकते हैं कि v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3u, राइट? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जो मिरर फॉर्मूला है दैट इज 1 by v प्लस ऑफ 1 by u इक्वल्स टू 1 by f. यहाँ पे ये एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है दैट इज v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3u, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट? सो द फोकल लेंथ फॉर द केस ऑफ अ concave mirror that will be having the minus sign here, that is a minus of 18 centimeter. So in this case that will be of 1 by
v का वैल्यू कितना है माइनस ऑफ 1/3u, सो इट विल बी माइनस ऑफ 1/3u एंड इट विल बी ऑफ 1/u एंड फोकल लेंथ दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 1/18 सेंटीमीटर, राइट। सो अगर आप एलसीएम करते हैं तो आपको 3u मिलेगा, दैट इज ऑफ -1 प्लस ऑफ 3 दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 1/18, राइट। नाउ सो यहाँ पे आपको कितना वैल्यू मिल रहा है, दैट इज ऑफ 2/3u दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 1/18, so 3 6 are 18, so u is equals to minus of 12 सेंटीमीटर, राइट। सो u आपको कितना मिला माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर। सो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है, राइट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो -3 मल्टीप्लाइड बाय ऑफ -12, सो इट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 36 सेंटीमीटर। तो एक बार चेक कर लेते हैं सारा वैल्यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना मिला है माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू देखिए फोकल लेंथ से छोटा है। फोकल लेंथ आपका माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, राइट। इमेज डिस्टेंस कितना मिला है आपको 36 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज आपका राइट हैंड साइड में बना है मिरर का, तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका 36 सेंटीमीटर का हो गया, राइट। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। So now this is the next question, that when an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex mirror, magnification produced that is equals to 1/2, right? So what is given in this question? When an object is placed at a distance of 60 centimeters, so this is the object distance, right? So the object distance that is of minus of 60 centimeter. In this case, the magnification produced that is equals to 1/2. So magnification is having the formula of minus of v by u that is equals to 1/2, right? Magnification का formula ये होता है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, तो u का जो वैल्यू है दैट इज अ माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। सो माइनस ऑफ v बाय u का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस ऑफ 60, राइट। सो इट इज इक्वल्स टू हाफ, सो दिस माइनस साइन आर गेटिंग कैंसल्ड आउट, सो v by 60 is equals to half, so we are getting the v as 30 centimeter, right। so in this case आपको v कितना मिला ना, v is of 30 सेंटीमीटर, क्योंकि एक कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर में v का आपका पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको u भी मिल गया है दैट इज अ माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर और आपको v भी मिल गया है कितना ना 30 सेंटीमीटर, तो आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो, राइट। फोकल लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एक ही फॉर्मूला है हम लोगों के पास, मिरर फॉर्मूला, दैट इज अ 1/v प्लस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f, that is equals to 1/v, that means of 1/30 minus of 1/60 equals to 1/f, right? Now we'll just take the LCM, that is of 2 minus of 1, that is of 1/f. So we are getting the focal length, that is of how much? So 1/f is equals to 1/60. So focal length is having the value of 60 centimeter, right? Focal length का value आपको कितना मिला ना, that is of 60 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बोला कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, राइट। तो आपको मैग्निफिकेशन कितना चाहिए ना, 1/3 चाहिए, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अलग होगा, राइट, इमेज डिस्टेंस भी अलग होगा, बस फोकल लेंथ आपका निकल गया यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, वो आपका काम में आएगा। अब देखिए आपको मैग्निफिकेशन कितना चाहिए ना, 1/3। सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1/3, इसका फॉर्मूला कितना होता है, द मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस ऑफ v by u इक्वल्स टू 1/3, सो v इक्वल्स टू u इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 3v, राइट। सो u का एक वैल्यू आपको मिला दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 3v। आपको क्या करना है, इसका जो वैल्यू आपको मिला है वो मिरर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या है ना, 1/u प्लस ऑफ 1/v इक्वल्स टू 1/f, राइट। तो यहाँ पे u का वैल्यू कितना मिला माइनस ऑफ 3v, राइट। सो 1/माइनस ऑफ 3v प्लस ऑफ 1/v इक्वल्स टू फोकल लेंथ का वैल्यू कितना मिला था ना, फोकल लेंथ इक्वल्स टू 60, तो फोकल लेंथ की जगह पर 60 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हुआ ना, 3v दैट इज इक्वल्स टू -1 प्लस ऑफ 3 दैट इज ऑफ 1/60, राइट। So it is equals to 2 by of 3v that is equals to 1/60. So
वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ v एज 22 जा 40 सेंटीमीटर. सो आपको इमेज डिस्टेंस यहाँ पे मिला दैट इज ऑफ 40 सेंटीमीटर. पर आपको यहाँ पे मांगा क्या है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इमेज डिस्टेंस जो मिला वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे. दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 3 इंटू 40, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर. तो इस तरीके से आपको फाइनल आंसर जो मिला दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर. इट इज द करेक्ट आंसर, राइट. तो हम लोगों ने पहले क्या किया, देखो ध्यान से. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ था 60 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दिया हुआ था, हम लोगों ने वहां से इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, राइट. इमेज डिस्टेंस अगर कैलकुलेट कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले से दिया हुआ था, मिरर फॉर्मूला यूज करके हमको फोकल लेंथ मिल गया था. फोकल लेंथ कितना मिला था ना, 60, राइट. अब फोकल लेंथ मिलने के बाद जो सेकंड कंडीशन है, दैट वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ 1/3. दैट मींस द मैग्निफिकेशन इज 1/3. सो इन दिस केस मैग्निफिकेशन अगर आपका 1/3 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों बदल जाएगा. पहले का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस था वो आपका कोई काम का नहीं रहेगा सेकंड वाला फाइंड आउट करने के लिए. तो इसके लिए हम लोगों ने एज्यूम किया दैट इज ऑफ माइनस ऑफ v बाई u इक्वल्स टू 1/3. सो u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3v. उसके बाद मिरर फॉर्मूला का दोबारा यूज हुआ यहाँ पर, दैट इज ऑफ 1 बाई u प्लस ऑफ 1 बाई v इक्वल्स टू 1 बाई f. सारा वैल्यू जैसे u इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3v हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया. फोकल लेंथ का जो वैल्यू था 60 सेंटीमीटर हमने सब्सटीट्यूट किया. आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द कैलकुलेशन वी आर जस्ट गेटिंग द v एज 40 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस हमको मिल गया 40 सेंटीमीटर. सो इसको अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं वी आर गेटिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एज माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर. So in this way we are able to do the solution of this question. Now this is the next question. Where an object is placed 18 cm front of a mirror, if the image is formed at 4 cm to the right of the mirror, you have to calculate the focal length. इस क्वेश्चन में सबसे अच्छा बात जो है, जो मिरर कौन सा है ये बोला नहीं है यहाँ पर, राइट. सो इट कैन बी अ कंकेव मिरर, इट कैन बी अ कन्वेक्स मिरर, राइट. नाउ आपको ये बताना है कि ये मिरर कौन सा है, कंकेव है कि कन्वेक्स है. व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज कैसा होगा. अगर वो इमेज मिरर के राइट साइड में बन रहा है तो वो ऑब्वियसली एक वर्चुअल इमेज होगा जो कि इरेक्टेड होगा, राइट. सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर आल्सो. तो यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए मिरर. मिरर के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे बोल दिया गया है माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर, राइट. द इमेज इज फॉर्म्ड एट द 4 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर. सो इमेज डिस्टेंस ऑब्वियसली आपका 4 सेंटीमीटर है, राइट. यहाँ पे इमेज डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर है जो कि राइट साइड पे बना है, तो इसीलिए प्लस हुआ. तो मिरर फॉर्मूला पहले यूज करते हैं, दैट इज ऑफ 1 बाई v प्लस ऑफ 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई f, राइट. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दैट इज ऑफ माइनस ऑफ 18 सेंटीमीटर. इमेज डिस्टेंस 4 है, दैट इज ऑफ 1 बाई 4 माइनस ऑफ 1 बाई 18 इक्वल्स टू 1 बाई f, राइट. सो 4 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 36, राइट. सो 4 9s are 36, 18 2s are 36, that is of 1 by f. So 7 by 36 is equals to 1 by f. So f is equals to 36 by of 7. So focal length का जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है that is of 36 by 7, right? So focal length आपको approximately 5 मिल रहा है, right? तो अगर इसको कंकेव मिरर होना चाहिए था तो कंकेव मिरर में उसका जो फोकल लेंथ होता वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज्यादा होता, राइट. मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि अगर ये आपका कंकेव मिरर है तो यहाँ पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है तो अगर ये आपका फोकल लेंथ है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो इस केस में ऑब्वियसली यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है. तो अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे 18 गिवन है पहले से तो फोकल लेंथ इससे ज्यादा होना चाहिए अगर एक कंकेव मिरर होता तो. पर यहाँ पे फोकल लेंथ का जो वैल्यू मिला वो 36/7 है, 5 से थोड़ा ज्यादा है, राइट. तो ऑब्वियसली एक कंकेव मिरर नहीं हो सकता, इट इज अ कन्वेक्स मिरर, राइट. तो अगर ये आपका एक कन्वेक्स मिरर है, नाउ इफ इट इज अ कन्वेक्स मिरर, सो इस केस में हम लोग देखेंगे कि इसका फोकल लेंथ तो हम लोग को मिल गया दैट इज ऑफ 36/7. तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज में हम लोग बोल सकते हैं कि द इमेज should be
diminished in nature. First, all the images produced by the convex mirror that is of diminished in nature, and it will be a virtual image and it will be erected, right? ये तीन चीजें इमेज के बारे में बताना जरूरी है। और इमेज कहाँ पे बना है? इमेज इज प्रोड्यूस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर, right? Now what will be the radius of curvature? The radius of curvature is equals to twice of the focal length. We know that. So the focal length is of 36/7. It should be multiplied by of 2 and it will be of 72/7 that centimeter, right? So focal length अगर आपका 36/7 है, radius of curvature आपका 72/7 होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी अगर आपको आता है तो आपको सोल्यूशन इस तरीके से करना है। Now we have just moved to the next question. ये सबसे easiest question है। यहाँ पर आपको बोला गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका 60 डिग्री है तो आपको ये एंगल ऑफ डेविएशन पता करना है। एंगल ऑफ डेविएशन को एक्चुअली हम लोग डेल्टा से मेजर करते हैं, राइट? तो डेल्टा का वैल्यू कितना होगा? तो ऐसा वाला क्वेश्चन आपको दिया जाता है 1 मार्क के लिए, राइट? तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्यूशन करना है? तो अगर आपका डेल्टा का वैल्यू मांगा है और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया है आपको 60 डिग्री, राइट? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपका 60 डिग्री होगा, राइट? सो ये पूरा तो आपका 180 डिग्री है, राइट? ये टोटल आपका 180 डिग्री है। तो डेल्टा इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री माइनस ऑफ 60 प्लस ऑफ 60, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो इक्वल है। सो अगर हम दोनों का वैल्यू टोटल एक जगह पे पुट कर देते हैं तो विल गेट द एंगल एज 60 डिग्री। तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन कितना मिल जाता है? दैट इज ऑफ 60 डिग्री, राइट? नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन वी हैव स्टिल नाउ। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का कंसेप्ट के ऊपर बेस करके बनाया गया है कि मान लीजिए कि एक मिरर है, ठीक है, एक प्लेन मिरर है, तो इसके ऊपर इंसिडेंट रे अगर ऐसे आता है तो वो जिस रास्ते में आया था उसी रास्ते में वो वापस चला जाएगा, बिकॉज इन दिस केस द इंसिडेंट रे इज हैविंग द एंगल ऑफ 0। इफ इट इज हैविंग एंगल ऑफ 0 तो द रिफ्लेक्टेड रे इज हैविंग द एंगल ऑफ 0। सेम। नाउ क्वेश्चन ये बताता है कि अगर इस मिरर को हम कुछ एंगल में शिफ्ट करते हैं, या फिर इस साइड में शिफ्ट करो या फिर इस साइड में शिफ्ट करो, अगर हम शिफ्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, पहले मिरर एक्चुअली इस पोजीशन में था, अब मिरर को कुछ ऐसा किया गया है, राइट? अब मिरर को कुछ ऐसा किया गया है, मतलब ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन हम अभी बना लेते हैं कि ये मान लीजिए कि 40 डिग्री में शिफ्ट हुआ है, राइट? अब अगर 40 डिग्री में शिफ्ट हुआ है तो आपका रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री में, अब उसका रिफ्लेक्टेड रे का चेंज कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले जो रे आता था वही रे यहाँ पर अब आएगा, राइट? ऐसे, पर अब ये शिफ्ट हो चुका है, 40 डिग्री में शिफ्ट हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर इसका एंगल अगर 40 डिग्री है तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ए वाला हर एक एंगल का वैल्यू 40-40 करके होगा, मतलब इंसिडेंट एंगल भी अभी 40 हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी 40 हो जाएगा। मतलब अगर आप मिरर को नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा भी शिफ्ट करते हो, अगर आप 40 डिग्री में शिफ्ट किए तो रिफ्लेक्टेड रे आपका जो नॉर्मल पोजीशन था वहां से ट्वाइस ऑफ द एंगल में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 80 डिग्री में घूम जाएगा, राइट? तो ऐसे तरीके का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि अगर आपकी मिरर को हमने शिफ्ट कर दिया, मतलब थोड़ा सा रोटेट कर दिया विद सम एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो रिफ्लेक्शन एंगल का चेंज कितना होगा? तो जस्ट उसका डबल कर देना है, दैट इज ऑफ 80 डिग्री, बिकॉज इन दिस केस द टोटल डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल पोजीशन दैट इज ऑफ 80 डिग्री। क्यों बोल रहे हैं 80 डिग्री? क्योंकि पहले क्या होता था कि इंसिडेंट रे ऐसे आके इसी रास्ते में वापस चला जाता था, तो उसका प्रीवियस पोजीशन है। अब रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट रे आ रहा है और ऐसे रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, तो पहले वाले पोजीशन से कितना डेविएट हुआ? दैट इज ऑफ 80 डिग्री, तो इसीलिए इसका आंसर 80 डिग्री होगा। नाउ वी हैव जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कि मिरर का पोजीशन कुछ इस तरीके से अरेंज किया गया है, और मान लीजिए कि इंसिडेंट रे ऐसे आता है विद सम एंगल, ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर गिरता है, देन ऐसे निकल जाता है, तो रे का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, राइट? तो यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके का आता है पहले बता देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर इंसिडेंट रे को एक एंगल का वैल्यू ले लेते हैं, हाँ, दोनों का पहले हम परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच लेते हैं, देन
अगर मान लेते हैं कि इंसिडेंट रे आपका 50 डिग्री पे आया, ठीक है, इंसिडेंट एंगल अगर आपका 50 डिग्री है तो यहाँ पर ए वाला एंगल भी तो आपका 50 डिग्री होगा, राइट। अगर ए वाला एंगल आपका 50 डिग्री है तो ए वाला एंगल कितना होगा, ये एक्चुअली क्वेश्चन आता है। आपको लगेगा कि सर ए वाला तो 50 डिग्री है, बगल वाला भी 50 हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सारा एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे अगर एंगल आपका 50 डिग्री है तो ऑब्वियसली ए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ए वाला एंगल कितना होगा, सो ए वाला एंगल ऑब्वियसली आपका 90 माइनस ऑफ 50 डिग्री होगा, राइट। तो इसका मतलब ए वाला एंगल अगर 40 डिग्री है तो ए वाला एंगल भी आपका 40 डिग्री होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कोई एक एंगल पे कोई एक रे आपको यहाँ पर आके गिर रहा है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि द इंसिडेंट एंगल इज ऑफ 50 डिग्री, सो द रिफ्लेक्टिंग एंगल इज आल्सो ऑफ 50 डिग्री। सो ए रे जब ऐसे रिफ्लेक्ट होता है इस सरफेस पे, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना कि ए वाला एंगल का वैल्यू ऑब्वियसली 90 माइनस ऑफ थीटा होगा। अगर ए वाला एंगल आपका थीटा है तो ऑब्वियसली आपका 90 माइनस ऑफ थीटा होना चाहिए, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है इसीलिए। नाउ यहाँ पर ए वाला एंगल अगर 40 डिग्री होता है, दिस इज द इंसिडेंट एंगल, सो ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका 40 डिग्री होगा, राइट। तो इस तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। सो नाउ वी हैव जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यहाँ पे बोला कि शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द फुल इमेज ऑफ ए पर्सन इज हाफ ऑफ एट साइड। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको पहले एक मिरर का डायग्राम बना लेना है जो कि एक प्लेन मिरर है। यहाँ पे पूछा कि अगर इस मिरर के सामने कोई एक पर्सन को खड़ा किया जाए तो उसका फुल इमेज लाने के लिए इस मिरर को उनका हाफ ऑफ द हाइट होना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर उस उनका आई है, राइट। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, राइट। और यहाँ से मान लेते हैं कि एक दूसरा लाइट ऐसे जा रहा है और ऐसे निकल रहा है, राइट। तो ऐसे अगर हम लोग मान लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करते हैं इन दोनों जगह पे जहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये ऊपर वाला पोर्शन मान लेते हैं, ऊपर वाला पोर्शन हेड है, बाकी ये पूरा बॉडी, और नीचे वाला पोर्शन एक्चुअली ये वाला थोड़ा और ज्यादा डेविएट होगा, राइट, ऐसे, राइट। तो नीचे वाला ए वाला पोर्शन हम मान लेते हैं कि हेड है, ये वाला पोर्शन एक्चुअली फुट है, और यहाँ पे एक्चुअली उनका आई है, राइट। तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं कि दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहाँ पर है डी, यहाँ और यहाँ पर है ई, ओके। सो इन दिस केस दिस इज अ मिरर दैट इज ऑफ पी एंड क्यू। आपको क्या प्रूव करना है कि ए मिरर के सामने जब इस आदमी को खड़ा किया गया तो इनका जो हाइट है, मिरर का हाइट इनके हाइट का हाफ है, राइट। तो पहले हम लोग को देखेगा कि यहाँ पर जो यहाँ से जो रे निकला है इनका यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ है। अगर ये रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बने हैं इनका जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं दोनों ट्राइंगल आपका कंग्रुएंट होगा। तो अगर ये बात है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि APD, triangle APD is congruent with a triangle APB, right? अगर ये दोनों ट्राइंगल आपका कंग्रुएंट होता है, कंग्रुएंट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल आप सेम बता सकते हो, राइट। मतलब ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग बोल पाए कि AD इक्वल्स टू DB है, right? By CPCT we can say that corresponding parts of congruent triangles we can say that AD is equals to DB, right? अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम होगा। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में लिखते हैं कि ट्राइंगल BQE is congruent with a triangle EQC. So what can I say that BQE is congruent with EQC, right? तो मतलब BE equals to EC होगा, right? If BE equals to EC होता है, then हम लोग बोल सकते हैं कि ये टोटल हाइट, हर एक हाइट को अगर आप ऐड करते हैं तो ये पूरा हाइट मतलब पर्सन हाइट बन जाता है, राइट? तो हम लोग लिख सकते हैं कि द टोटल हाइट H इक्वल्स टू, वेयर H इज द हाइट ऑफ द पर्सन,
it is equals to AD plus of DB plus of BE प्लस ऑफ EC, राइट। तो यहाँ पे AD और DB इन दोनों का लेंथ तो इक्वल है, राइट। यहाँ पे AD और DB इन दोनों का लेंथ इक्वल है, सो वी कैन से इट इज ऑफ x प्लस ऑफ यहाँ पे BE और EC इन दोनों का लेंथ भी इक्वल है, तो यहाँ से बोल सकते हैं इट विल बी ऑफ y प्लस ऑफ y एंड इट इज ऑफ h। सो व्हाट कैन आई से दैट h इज इक्वल्स टू 2x प्लस ऑफ 2y, राइट। So it is equals to h is equals to 2 into x plus of y. Now x plus of y अगर आप करते हैं तो x इतना सा पोर्शन और y इतना सा पोर्शन, तो दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो it is equals to the mirror height। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि twice of mirror height, right? So twice of mirror height it is equals to what is h? H is the height of the person. So what can I say that the mirror height is equals to h by 2. So that means it is proved that the height of the mirror that is required to get a full image of a person that is equals to half of the height of the person, right? तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या किया कि जो पर्सन का हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, उनके आई से जो रोशनी निकल रहा है उनका दो रे का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है। पहला रे जो ऐसे P पॉइंट की तरफ जा रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे निकल जा रहा है। अगर इसका एक रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये दोनों का दोनों ट्राइंगल्स ऑब्वियसली कंग्रुएंट होगा। कंग्रुएंट करने के बाद ई वाला पोर्शन आपका इक्वल हो जाता है, राइट। यहाँ से एक दूसरा रे भी निकला है जो ऐसे पूरा मिरर का जो लास्ट पोर्शन है उसको कवर करते हुए निकल गया है, राइट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्ट्स आपका इक्वल होगा, राइट। तो ऐसे क्या आपका AD और DB ये दोनों पोर्शन हम लोगों ने x मान लिया, यहाँ पर यहाँ पर BE और EC इन दोनों पोर्शंस को हमने y मान लिया, राइट। सो द हाइट ऑफ द पर्सन दैट इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ द लेंथ्स ऑफ AD प्लस ऑफ DB प्लस ऑफ BE प्लस ऑफ EC जो हमने यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर AD और DB इन दोनों का वैल्यू x है और यहाँ पे BE और EC इन दोनों का वैल्यू y है, राइट। सबको ऐड करने के बाद 2x plus of 2y, so we can write down after the calculation that mirror height that is required to get a full image of a person, it is equals to h by f2, right? So in this way it can be proved. So आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी गिवन है आपके पास। एंड टिल दैट कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।